everybody, we're back again with another episode of Kahin Kisi Roast. This week, we're going to talk about the wonderful world of Hindi serials and the plots. So we have Antara and Manushi here. Manu and Antara are both here to talk about what is it that triggers all these illegal plots. You know, in real life, it would happen to you. There's a legality associated with those things, which is not written on screen. On screen, these people just take away all the legality of these various things that we're going to talk about, and they present it to audiences as all right. And then what happens is crazy people think that this okay. It's okay to hit and run somebody and you'll never get caught. It's okay to take a document from somebody, rub it off, write your name, and that property becomes yours. Or it's okay to divorce a woman by just giving her a document. All of that is illegal, guys. These are not real life plots. But let's talk more about how these illegal plots have entered our life. Antara, what is the weirdest illegal plot that you've thought about that we've seen in Hindi serials? I mean, I am losing track of like all the illegal things that I've seen in Hindi TV serials passed off as normal, like people like, forgiving criminals for killing their family members to, like getting the property papers just by, getting them drawn, getting it signed, and like, oh, I stole this paper from your locker, तो अब ये मेरा हो गया और ये property के papers मेरे हो गए तो जायदाद मेरे नाम हो गई. And then the hero's counter plot, like कैसे इसको counter करेंगे? They plan to steal back this is their court नहीं जाएंगे, they'll steal back the property papers और इस पे ये लोग महीने भर का plot लिख देते. But in real life ऐसा नहीं होता, because कोई भी legal document जो आपके पास है उसकी एक copy court के साथ registered होती है. And unless the person who is the owner of the legal document goes to the court in sane mind, not drunk, proves that he's of sane mind and says, I want to transfer this property to so-and-so person, let's register it. जब तक वो process complete नहीं होता, reality में ऐसे कोई paper transfer, property transfer, कोई आपको घर से नहीं निकाल सकता. मैंने अभी last time I went to India, I had to sign like land खरीदे थे मेरे पापा and like register करना था. मुझे याद है 9 बजे से 5 बजे तक हम लोग, जब तक वो बंद नहीं हो गया था वो तहसील ऑफिस, इट्स सच अ स्मॉल ऑफिस, सो क्राउडेड, हम लोग बैठे हुए थे लाइक एक बार बुलाते, 4 बार बुलाते आपको अलग अलग पेपर साइन करने के लिए, अलग अलग लोगों के बीच में अपीयरेंस करने के लिए और विटनेसेस के साथ. सो बॉस, ये हिंदी सीरियल में ये अगर तुम्हें इतना ही टाइम वेस्ट करना है हमारा, तो तुम ये तहसील ऑफिस का सीन लिख दो. इट इज कुछ तो रियलिस्टिक हो. एक सीरियल है कुमकुम भाग्या, उसमें बंदे ने 2 औरतों से शादी कर रखी है. तो पहली औरत ने जो दूसरी औरत है उसने पहली औरत को ड्रंक किया और उससे डिवोर्स पेपर साइन करवाया और बोला अब तो डिवोर्स्ड है. एंड फिर उस बंदे ने दूसरी औरत को ड्रंक किया और उससे डिवोर्स पेपर साइन किया कि मेरे पास तो तेरे साइन डिवोर्स पेपर है. ये हाल है इन लोगों का. मतलब प्लॉट्स, what is it smoke to write these plots? और कोई ऐसा प्लॉट है तुम्हारे दिमाग में? ऐसा मतलब ये लोग बुलाते हैं उसको महिला मुक्ति मोर्चा, पुलिस के पास नहीं जाएंगे. पत्नी दूसरी शादी करता है तो दे कॉल दिस महिला मुक्ति मोर्चा एंड व्हाट दे डू. और ये सब इतना नॉर्मलाइज कर दिया है ना शोज ने, ऐसा नहीं होता. वो लोग ना दे ब्रिंग टार एंड दे ब्रिंग ब्लैक पेंट, ऐसे दिखाना शुरू कर दिया. एंड दे जो भी सेकंड औरत है उसका हस्बैंड को नहीं टच करेंगे. जो सेकंड औरत वो क्लेम करी कि इस औरत ने मेरे पति से दूसरी शादी की या फंसा रही है, उसका वो लोग सब आंटीज लोग आके उसका चेहरा पर वो लीगल है क्या? महिला मोर्चा जाके काला करे लोगों का फेस? मतलब नहीं, पुलिस कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू. ऐसा कोई नहीं करता. रियल लाइफ में आपका मुंह काला नहीं करते ये लोग पकड़ के. एंड दे शो इट, दे गो एज अ मॉब, घर से ड्रैग करके. ये कॉमन कर दिया है, ये इतना कॉमन कर दिया है कि लड़की को घर से ड्रैग करके उसको घसीटते हुए ले जा रहे, उसका चेहरा काला कर दे. लड़के का तो कभी कोई फॉल्ट ही नहीं होता है ना. वो तो बेचारा, वो तो सिर्फ जहां उसको लड़की ने बोला चल जाता, ही इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द वुमन, है ना. औरत ही खराब होती है हमेशा, मर्द तो वही है. अच्छी औरत जो है उसको हीरो लास्ट मोमेंट पे आके बचा लेगा, उसका चेहरा काला नहीं होने देगा. इस पे भी प्लॉट, चेहरा काला होने जा रहा है तो उसके मांग में सिंदूर भर देगा कि ये मेरी बीवी है, तो ये लोग सब मान जाते हैं, हाँ ठीक है बाय बाय मैं जा रही.
और जो बुरी औरत है उसका दिखाते हैं वो लोग चेहरा काला करना, क्योंकि दिस इज व्हाट टीआरपी ऑडियंस एक्सेप्ट ऑफ, दे आर लाइक कि हाँ इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। अरे पर ये बेइज्जती भी तो लीगल नहीं है, जो कर रहे हैं वो तो लीगल है नहीं, जो बेइज्जती है वो भी इलीगल है, पुलिस आएगी तो सबको जेल में डालेगी। पर नहीं, ये लोग उसको भी ऐसे दिखाते हैं चाव से, एंड दे जूम इन एंड ऑन दैट, लाइक इट्स सो डिस्गस्टिंग टू वॉच दिस काइंड ऑफ शिट ऑन टीवी, एंड दैट जस्ट फ्लाइज एट लाइक, ओ पुलिस को कॉल करना भाई, तेरे हस्बैंड ने बिगमी की है तो पुलिस को बोला, बोल के दूसरी शादी की है, फाइल अ केस अगेंस्ट बोथ ऑफ देम, गेट देम अरेस्टेड, व्हाटएवर। नहीं, पुलिस पुलिस में जाएगा तो नाम खराब हो जाएगा फैमिली का, उनका ऐसे लॉजिक ही बेगमी होता है। करके नहीं खराब हो रहा है हाँ नाम, नहीं नहीं, पर इसीलिए मैं पुलिस महिला में मुक्ति जाकर मोर्चा, खराब हो जाएगा। मैं वाह, महिला मुक्ति मोर्चा बनाऊंगी। क्या लॉजिक, महिला मूर्ति मोर्चा बुलाकर हर हर पार्टी के सीन में वहां बदनामी हो रही है, उससे नहीं खराब हो रहा नाम, उससे नहीं पर खराब हाँ होता। पुलिस में जाने से जरूर खराब हो जाएगा नाम। अमेजिंग, क्या प्लॉट है, बहुत अच्छा प्लॉट है। मनु, और बताओ कोई ऐसा प्लॉट। तो सबसे फनी प्लॉट तो मैं बताती हूँ कि मतलब इन लोगों के हिसाब से इट्स लाइक कि सबसे फनी पार्ट तो ना ऐसे सिंदूर से शादी हो जाती है, मतलब फेरे वेरे घूमने की जरूरत नहीं डूड पड़ती। डूड, जब सिंदूर हम वो देख रहे थे माउंटेन शौर्य डिस्कशन भी नहीं अनोखी की करना। कहानी, और उसने उसके मांग में सिंदूर भर दिया था, मेरी ऑफिस में लड़कियां डर गई थी, ओ कैन वी प्ले होली नाउ, बिकॉज़ होली इफ somebody puts color in our hairline, will we marry? Seriously, will we be married to those people if they put color in our hairline? This is what people think is marriage. सबसे फनी पार्ट तो क्या होता है कि 7 फेरे, 7 वचन ये सब कोई ज़रूरी नहीं होते। मंदिर में जाके रैंडमली तूफ़ानी रात होती है। पता नहीं ये आईटीवी सीरियल्स में इतने तूफ़ान कहाँ से आते हैं। पर मंगलसूत्र जरूर मिल जाता है उनको उस तूफानी रात में। हाँ, कौन सा तूफ़ानी रात ज्वेलर में दे देता है उनको पट से मंगलसूत्र, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। ऐसे मिल जाता है कि उन लोग को बाहर जो स्टॉल्स लगे होते हैं उसमें मंगलसूत्र भी दे दो भैया नारियल के साथ। अरे नारियल, सीरियसली हाँ बोलो एक्चुअली बोलो। आंसर है, बहुत अच्छा आइडिया, मंदिर के बाहर मंगलसूत्र की दुकान होना बहुत जरूरी है। और तुम बोल रही थी ये तूफानी रात वाला। पर ये ऐसे मांग भर देने से शादी हो जाती है, मतलब कल उठ के वो शादी मतलब वो सिंदूर विंदूर लगा के मैं आज से अर्धांगिनी व्हाटएवर व्हाट द हेल दैट डज दैट इवन मीन, ऐसे कैसे शादी हो जाती है। और हमारे घर पे तो मतलब ऐसे सिंदूर गलती से भी देखा हुआ देखे ना लगा हुआ तो वो कोई शादी नहीं गिनते, माँ बाप रूम में बंद करके बिठा देते हैं, बच्चों को बोलते हैं भाई इसको शादी नहीं बोलते हैं, घर पे लड़के को लाओ, एक्सेप्टेंस लाओ, बाद में ये सब शादी वादी ड्रामा होता है। सीरियल्स में तो अलग ही सियापा चल रहा होता है, शादी हो गई तो वो अचानक उसको अपने आप ऐसे प्यार होने लगता है, मतलब कम ऑन यार, शादी कर देने से प्यार नहीं हो जाता ऐसे अचानक ओवरनाइट कि नहीं नहीं अब तो मेरा दिल पिघल रहा है, अब तो मैं आइसक्रीम बन रही हूँ अंदर से इसको देख के, अब मेरी शादी हो गई इसलिए नाउ अचानक पवित्र से रिश्ता, पवित्र, ट्रूली दैट नहीं नहीं, स्टूपिड प्लॉट, ये तो है, वो तो है शादी हो अलबेला गई तो सेम पवित्र स्टोरी। रिश्ता जुड़ गया। पीछे से गाना बजता है और इनको फीलिंग्स आ जाती है, टाइटल ट्रैक बजता है और फीलिंग आ जाती है। अभी सबसे फालतू शो जो चल रहा है गुम के साथ, कहीं क्या नाम है उसका, कभी कभी ये के साथ। सरोगेसी ट्रैक्स। अरे मैं, हाँ वो छोड़ो, आपका कभी वही वो सिंदूर वाली शादी करके वो लीगल वाइफ बन के फिर रही है। बट हाँ सरोगेसी तो नो कमेंट्स ऑन द। सरोगेसी लीगल होने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इवन इंडिया में, यहाँ पर तो खैर काफी सारे लॉज हैं अमेरिका में, पर इंडिया में दो चीजें इंपॉर्टेंट। वन, वो औरत पहले माँ बनी होनी चाहिए, that's one. So if the woman hasn't been a mother before, the pregnancy might not be stable, so she cannot be a surrogate. She should have been a mother before, that's one. Secondly, दूसरी चीज, वो रिलेटिव नहीं होनी चाहिए आपके, आपके हाउस होल्ड में नहीं रहनी होनी चाहिए, आपसे किसी भी तरीके रिलेशन नहीं होना चाहिए। और तीसरा, सरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब आप सरोगेट चूज करते हो तो डॉक्टर को सरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, तब जाकर वो डॉक्टर वो प्रोसीजर कर सकता है फर्टिलाइजेशन का। सो नाउ ये सारी चीजें किसी भी सीरियल में दिखाई नहीं जाती है, किसी भी चीज में फॉलो नहीं किया। दिस इज इलीगल, दिस इज इलीगल, यू कैन गो टू जेल फॉर दिस। एंड इन अ सीरियल लाइक घूम, जहां पर वो बंदा आईपीएस ऑफिसर है, उसको वो आईपीएस ऑफिसर किसने बनाया,
know. अरे वो तो खुद से रूल तोड़ता है, नक्सलाइट को प्रोटेक्ट करता है, एंड लाइक प्रिटेंड्स टू बी मैरिड टू दिस वुमन एंड राइट्स लाइक फॉल्स डॉक्यूमेंट फॉल्स करता है, और फिर लास्ट में उसको 25 Award. तोपों 21 तोपों की सलामी देके उसको मेडल मिल जाता है, वही सब क्राइम्स के लिए की, जो लिटरली ये सब क्राइम्स है, इसके लिए यू गेट देशद्रोही जिन चीजों के लिए पर बोलते एक हैं उसके लिए आईपीएस ऑफिसर जो जिसको कोर्स में जब वो आईपीएस बनता है उसको लॉ पढ़ाया जाता है, उसको नहीं पता ये इलीगल है कि उसकी भाभी उसका बच्चा नहीं रख सकती. Doesn't he know it is illegal? ये क्या You know स्टोरी what I लिखते हैं? think? What are they smoking to write the story? सरोगेसी पे यू वोंट बिलीव एक शो बना था, यू आर सेइंग कि ये रिलेटिव नहीं कर सकते, ये दिस इज न्यू टू मी, क्योंकि एक पूरा शो बनाया है जी ने, हमारी वाली गुड न्यूज करके, जिसमें एक मम्मी अपनी बेटी का बेबी सरोगेट, मतलब शी बिकम्स सरोगेट फॉर हर ओन डॉटर. इज दैट अलाउड? No, it's illegal. क्योंकि It's दैट्स द totally होल प्लॉट illegal ऑफ in द India. शो. In India, they can go. It's criminal liability to not follow this law. Unless like they didn't have a contract, but that was the whole plot of the show. This mother, for her married daughter couldn't bear kids, so she decided to become a surrogate for. मुझे लगता था अलाउड है शायद, लाइक यही ना, मुझे तो पता है, लाइक आई एम वेल रेड आई थिंक, बट मेरे जैसे लोगों को भी ये कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अच्छा शायद ये अलाउड है, तो सोचिए नॉर्मल ऑडियंस प्रॉब्ली यही सोचती होगी कि चलो ठीक है, सबसे मम्मी मेरे बदले में मम्मी बच्चा कैरी कर लेगी, but no, it's illegal. It's absolutely illegal in India. So yes, all these plots, I don't know, these writers are smoking to write these weird plots. हाँ, एक और plot तो illegal होता है, whitewashing crimes. Let's talk about that. यू नो Manu. व्हाइट वॉशिंग क्राइम्स में तो सारे शो के जो राइटर्स होते हैं पीएचडी करके बैठे होते हैं, डॉक्टरेट करके बैठे होते हैं, बिकॉज वो मर्डर कर लेते हैं, वो दे गेट अवे विद एक्सीडेंट्स, दे गेट अवे विद मर्डर्स, दे गेट अवे विद बहन को टॉर्चर फिजिकली मेंटली कैसे भी अब्यूज करे या सेक्सुअल भाई को अब्यूज हरासमेंट करे. Oh एवरीथिंग अंडर द no, सन. जो नई बहू होती है घर में उसको कैसे लोग ताने मारते हैं and everything. You know, that is a part of domestic violence. It falls under domestic violence. And it doesn't have to be people living in the household. It doesn't have to be men that go to jail for domestic violence. It can be women that inflict mental harm or physical harm to another woman. All of that falls under domestic violence legally. So ये जितने भी plots हैं जहाँ सरोज आंटी क्या है उस लड़की नाम सयूरी को चिल्ला रही होती है सवेरे शाम, that's domestic violence. कुमकुम भाग्य में the सास saying stuff like तू बांझ है to the daughter-in-law is domestic violence. अरे ये तो आप वर्बल बोल रहे हो, वो लोग तो A man asking a woman to in order leave to her show marital them. home is domestic violence. ये सारी चीजें domestic violence के अंदर है. In fact, as per Indian law, they can ask the man to leave the house if the woman is feeling unsafe. This is ये सब तो इंडिया में तो लड़कियों को ऐसे कंडीशन किया जाता है ना कि सह लो, थोड़ा सा वो लोग बोलेंगे तुम सह लेना, वो सुनाएगी तुम सह लेना, तुम चुप हो जाना. मैंने खुद देखा है अपने आसपास की लोगों को ऐसे बोलते हुए, लड़कियां जो नहीं सह रही है तो उनको ये बोलते कि अरे वो तो है ही है, अभी वो सह लो, उनकी उम्र ऐसे हो गई है, शी इज ओवर 60, शी कांट चेंज, तो यू एडजस्ट. पर जो एक्चुअल जो मर्डर अटेम्प्ट्स और क्राइम्स आप कह रहे हो, उसको भी वो लोग व्हाइट वॉश कर देते कि अरे अब तो ये इसको बुरा लग गया, इसको गिल्ट हो गया तो ये सुधर गई. कुछ केसेस में तो गिल्ट भी नहीं होता है, पर वो फिर भी उसको व्हाइट वॉश कर देते कि पिछली बार जान लेने की कोशिश की थी, इस बार इसने स्लिप होने से बचा लिया, तो वाओ Good away. बेस्ट Best. आजकल तो मनुषी just finished recording episodes, तो मनुषी भी इसी के बारे में बात कर रही थी. मनुषी बेस्ट बहन के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे आप? अरे बेस्ट बहन के बारे में तुम्हें शब्द कम पड़ जाएंगे मीरा यार. आई नीड अ न्यू डिक्शनरी, बिकॉज वो बेस्ट बहन इतनी बेस्ट है ना कि वो इतनी बेस्ट हरकतें करती रहती है, दिन रात कोशिश करती है अपनी बहन की जिंदगी फूलों से कैसे सजाए. वो मतलब इतना प्यार करती है वो अपनी बहन से कि वो बार बार कोशिश करती है कि उसकी बहन गड्ढे में कैसे गिरे. उसकी लाइफ का एम ही वही है. मुझे तो ये नहीं समझ में आता इतने वेले लोग होते भी है क्या रियल में, जो इतने रिवेंज 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 रिवेंज, मतलब भाई पूरी जिंदगी, इतनी छोटी जिंदगी मिलती है हमको,
उसमें मुझे तो खाने से ही टाइम नहीं मिलता यार। यहाँ पे तो रिवेंज खेलते रहते हैं। इतना टाइम अगर मेरे को मिल जाए ना, उसको 1 साल को लिए सस्पेंड किया, फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ दिखाया है शो में कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उसके मेडिकल नेग्लिजेंस दिखाने के। 1 साल के लिए उसको लाइसेंस सस्पेंड किया है, तो उसने डिसाइड किया मैं 1 साल बैठ के मैं प्लानिंग प्लॉटिंग, ये अच्छा यूज नहीं है। यार, पर उसके अगर उसे सस्पेंड किया, उसका मैल प्रैक्टिस का केस कहाँ है? कोर्ट केस हम क्यों नहीं सब हुआ? आरोही फ्रॉम ये रिश्ता एक कहलाता है की बात कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को जिसको बेस्ट सिस्टर अवार्ड मिला है बाय द वे गाइस अभी। पर बेस्ट सिस्टर अपनी नानी पर गई है, राइट? अपनी अपनी क्या नाम थी, पार्लर वाली नानी। पार्लर वाली नहीं। या लिटरली या वही वही सारी हरकतें। बट टेल मी समथिंग, उसको अगर सस्पेंड किया तो मेडिकल एसोसिएशन का वो कहाँ, लीगल केस कहाँ है? शी शुड बी बिजी फाइटिंग दैट केस इंस्टेड ऑफ दे नो यू दे नो मेंशन कि तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस होगा, दे जस्ट मेंशनड इट, बट वो पर कहाँ है? दिखाने में डर क्यों रहे हैं? आप लिख के ले लो, ये 2 हफ्ते में वापस हॉस्पिटल में घुस जाएगी। यू यू चलो नो बेट व्हाट आई करते हैं, वांट। देखते हैं भावना व्यास लिखती है कि नहीं लिखती है कि ये प्लॉट में वो वापस हॉस्पिटल में घुसेगी कि नहीं। चलो, who's betting for this? यू नो व्हाट आई वांट कि एक बार सारे ना ये जो इलीगल चीजें होती है ना, सारे लॉयर्स, डॉक्टर्स, जितने भी होते हैं ना, जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, जिनको पता होते है इसके बारे में, कब वो लोग इन लोगों के अगेंस्ट एक केस फाइल करें कि हमारी हमारी चीजों को इतना गलत शलत बढ़ा के दिखाना, स्पेशली कोर्ट वाले, क्योंकि डिवोर्स और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर जैसे हमने बात की, शराब पी के ऐसे अरे प्रॉपर्टी यार, ये करती कौन है। कौन डिवोर्स पेपर्स जेब में लेके कौन बनाता है? अगर मैं यहाँ लीगल डॉक्यूमेंट बनाने बनाने जाऊँ तो लॉयर 1 हफ्ता लेता है बनाने में उस डॉक्यूमेंट को। 1 हफ्ते से पहले कोई बात नहीं करता, टाइम नहीं होता किसी के पास। इनके पास तो पेपर्स जेब में होते हैं। सबसे वर्स्ट पार्ट, ये लोग ग्रीन कलर का लॉयर वाला पेपर भी यूज नहीं करते, व्हाइट कलर के पेपर पे दे शो के सिर्फ टाइप करा हुआ है, और वो लोग उस पे साइन करा लेते हैं और फिर हो गया डिवोर्स। खड़े खड़े 2 मिनट का खेल होता है, जैसे पाकिस्तानी शोज में होता है ना, तलाक 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 बोल के तलाक हो जाता है। इंडिया में भी ऐसे ही होता है, डिवोर्स पेपर साइन कर लिया, बस हो गया तलाक, बस हो गया, ये लो तोहफा तलाक हो गया। कितना और नहीं, इतना ही नहीं, अनरियलिस्टिक। अब फाड़ देने से डॉक्यूमेंट इनवैलिड भी हो जाता हाँ, है, और अगर इससे आप इससे डॉक्यूमेंट फाड़ दें तो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करे। डॉक्यूमेंट है। गर्ल्स एंड बॉयज, वो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट कोर्ट के सिस्टम में रजिस्टर्ड होता है, तो आपका फाड़ना, आपका चोरी करना, आपको उसको हटाकर अपना नाम डालना, ये सारी चीजें। कुंडली भाग्य का प्लॉट फॉर द लॉन्गेस्ट फॉर 8 months was पृथ्वी stealing power of attorney and putting his name on power of attorney. How? Unless the person giving the power of attorney reassigns the power of attorney to somebody else, how is somebody stealing the document and changing the name valid? I mean, कौन लिख रहा है लॉजिकल प्लॉट्स? इनके इनके पूरे एरा में ना टेक्नोलॉजी नहीं होती, ना कंप्यूटर्स होते हैं, ना इंटरनेट होता है, ना हाँ, गूगल जब किसी ड्राइव को होती फोन है। करना हो तो फोन भी नहीं चलता। हाँ उनका फोन हाँ। नेटवर्क नहीं आता, उनके फोन में मैसेज भेजने की भी बैटरी नहीं होती। वो लोग पेमेंट, मतलब आज तक उन्होंने थैंकफुली ये नहीं दिखाया कि मशीन काम नहीं कर रहा तो पैसे नहीं निकाल पाए। मतलब थैंकफुली आज तक ये नहीं दिखाया कि एक क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फोन पे ऐसे बैंक वाले को बोल दे कि इतने पैसे निकाल के घर पे भेज दो। तो आज तक ये नहीं दिखाया कि पैसे घर पे लेके आ गया वो। तूने अच्छा प्लॉट आइडिया देखा, भावना व्यास लिख ये रही होगी। अब ये हो जाएगा। अब अच्छा, ये हो ये लोग को जाएगा। इतना सब कुछ इन लोग का हो जाता है, तो ये लोग इतना बैंक को, भाग्य यूनिवर्स में ये लोग हमेशा बैंक में क्यों जाते हैं और बैंक में रॉबरी क्यों होती है? हमें ये इनका एक स्टैंडर्ड प्लॉट है, हर लीप के बाद इनको कुछ कुछ करना होता है, एक ज्वेलरी स्टोर रॉबरी, एक बैंक रॉबरी, ये एक लोग अपने आप को फंक्शन में आते हैं अपग्रेड क्यों नहीं गुंडे। करते? ये लोग अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं करते? बिकॉज आजकल रॉबरी बैंक में जाके गोली दिखाने से नहीं होती, पर साइबर क्राइम से होती है। देयर स्कीम्स, ये सारी स्कीम्स हम आपको बता सकते हैं क्या है, हमसे आइडियाज लो। पर आजकल वो बैंक में जाकर गोली दिखाने, वो हाईएस्ट है ना, वो 1970s के ड्रामे हैं। आजकल के ड्रामे में कोई हैकर बैठकर आपके बैंक अकाउंट से पैसा चोरी कर सकता है। सेम गुंडे रिसाइकल होते घटिया रहते हैं कि हर 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 हाइस्ट में सेम
पिछले हफ्ते बैंक में रॉबरी की, आज हम ज्वेलरी स्टोर में रॉबरी करेंगे, पकड़े जाते पुलिस छोड़ देती, फिर से जाओ रॉबरी। अच्छा एक्सेप्ट फॉर ये, आई थिंक ये रिश्ता में भी एक ही बंदा जो डॉक्टर बनता है, हर सीरियल में वही बंदा डॉक्टर बनता है। उसका लोग हर सीरियल में से बुलाते हैं, आज हमें डॉक्टर की जरूरत है, आ जाना। वो पुलिस इंस्पेक्टर, वही सेम पुलिस। मुझे ना But सबसे you know, ज्यादा for the हंसी कहाँ longest आती है, time, जो बंदा ये रिश्ता का डॉक्टर था, वो कुमकुम में भी डॉक्टर था, वो कुंडली में भी डॉक्टर, हर जगह डॉक्टर घूम रहा, वो हर सीरियल में वो ही काम कर रहा था, लिटरली। हाँ वो लोग मुझे सबसे पता है कि इन लोगों की लाइफ में जितना ट्रॉमा होता है ना, अगर एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में इतना ट्रॉमा होता है ना, बेचारा इंसान घुट घुट के मर जाएगा, और डिप्रेशन का मारा बेचारा, मतलब कितने ही जाके कितने डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा, सर दर्द हो जाएगा, प्रॉपर्टी का क्लेश, कभी शादी का क्लेश, कभी कभी सिबलिंग्स का क्लेश, कभी कितना क्लेश भाई। जिंदगी में लोग खाना पीना तो खाते नहीं है, ये लोग ना मूवीज देखने जाते हैं, ये लोगों की लाइफ में ड्रामा के अलावा 24 घंटे ड्रामा, सुबह शाम ब्रेकफास्ट में वो ड्रामा। सेमी सर्कल में खड़े होकर सब डिस्कस करते थे, खड़े होकर बैठता भी नहीं कोई, खड़े होकर करना पड़ता वो सर्कल खड़े, हाँ मजा, बैठ के कैसे तुम झगड़ा कर रहे हो, बैठ के झगड़ा कर रहे हो तो झगड़ा नहीं है, सब खड़े हो जाएंगे और किसी औरत की फर्टिलिटी पे क्वेश्चन करेंगे, उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्कस करेंगे। इट्स परफेक्टली ओके ये करना है कि इसका तो बच्चा नहीं हो रहा, ये करना, अरे तेरा क्या है, वो कपल डिसाइड करेगा कि तुम लोग को हो कौन ये दूर दराज के रिश्तेदार जो ये उनके फर्टिलिटी पे कमेंट करे। घर में और किसी का बच्चा नहीं करवाना उनको, और भी 4-5 बहू है, उनके पीछे नहीं पड़ेगे बच्चा करो, इसी के पीछे घूम में द बेस्ट पार्ट इज द डिसीजन कि कौन बनेगा होस्ट बॉडी। वो माँ बाप नहीं ले रहे, वो उनकी वो ताई जी ले रही है, एंड शी इज द वन हु इज गोइंग एवरीवेयर सेइंग नहीं हमारे घर का चिराग इसकी कोख से लीगली। यू नो गाइस, 4-5 घंटे चले जाएंगे ऐसे अगर हम इतने सारे इलॉजिकल ड्रामा डिस्कस करते हैं। बट ये ना ऐसे डिस्क्लेमर हमें देना illogical चाहिए शो thing. के एंड में, इन केस एनी people like youth in India who are watching and who are crazy fans of these grey characters जो सोचते हैं कि ये लोग जो दिखाते हैं शो में वैसे ही हो जाता है, गलत है। ब्राइब लेना, ब्राइब देना इज अ क्राइम, ठीक है, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स टॉर्चर नॉट करना, किसी के साथ ठीक तरह से बात नहीं करना, you can be booked for domestic violence in that household whether you're a woman or a man. You cannot, सास का काम नहीं होता, जिस तरह से बात करते ना अनुपमा से, उसके ऊपर के ऊपर 15 डोमेस्टिक वायलेंस केस कर दिए होते कोई legally, because you cannot talk to another person, you can't harm emotionally, mentally or physically another person even in your household. It can even be your parents. Right? You एंड cannot गाइस, डिवोर्स ऐसे नहीं होता, एक कागज का टुकड़ा साइन कर देने से डिवोर्स नहीं होता ना, प्रॉपर्टी भर आपको देने नहीं से। मिल जाएगी अगर आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स चोरी करेंगे, ये भी नहीं होता। और सिंदूर भर देने से शादी नहीं होती गाइस, प्लीज 7 नहीं। फेरे या ये सब करने से, मतलब चर्च में जाके शादी करो, कहीं जाके शादी करो तो ही शादी होती है। और रजिस्टर करा लो, रजिस्टर करना होता है, इट डज नॉट मैटर, आप 1000 लोगों के सामने भी शादी करो, यू स्टिल हैव टू गो एंड रजिस्टर इट like the next day or Exactly, unless you register it in court, it's not a marriage registered in legally. आप हाँ, आपको पंडित सर्टिफिकेट दे सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडरगो वो सर्टिफिकेट लीगल है, पर पंडित को सर्टिफिकेट देने जरूरी है कि हाँ मैंने इन दोनों की शादी की है। तो वो सारे रीमैरिज के प्रोसेस, अच्छा तुमने जिस मंदिर में जाकर सिंदूर भर लिया है वो शादी है, वो नहीं होता, वो पंडित को सर्टिफाई करना पड़ता है, पंडित के पास अथॉरिटी होती है सर्टिफाई करने की हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू। सिमिलरली मौलाना को सर्टिफाई करना होता है, उसको रजिस्टर में डालना होता है कि शादी हुई है, एंड ऑल ऑफ दिस इज लीगली रजिस्टर्ड विद कोर्ट। आपको जाकर रजिस्टर करनी पड़ती है शादी फॉर इट टू बी अ लीगल यूनियन। hit and run and DUI are also illegal. Yes, DUI is illegal. DUI, you should never drive under the influence. So if you have had alcohol or you're having medicines, do not drive. Stay where you are or take an Uber or a cab. Do not, or let somebody else drive for you, but do not drive under. It's not cool and it's not sexy. That's just not.
उनको लगता है उबर ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनके दिमाग में टेक्नोलॉजी आती ही नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे टेक्नोलॉजी नहीं आती। उबर ओला कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है इनके दुनिया में, सिर्फ गाड़ी चला के जाना ही ऑप्शन होता है, और गाड़ी हाईवे पे ही अटकती है हमेशा, गली में सड़क में कहीं और नहीं अटकती है। मतलब गाइस ये सब बहुत इलॉजिकल ड्रामा हमें इतने सालों से फीड किया जाता है, बट कृपया करके ध्यान दीजिए ये सब इलीगल जो चीजें दिखाते हैं वो रियल नहीं होती, फिक्शनल होती हैं, सिर्फ और सिर्फ फिक्शनल होती हैं। Absolutely. And with that, we wrap up today's episode of Kahin Kisi Roast. अच्छा roast किया ना? बहुत बहुत जला दिया तो चलो See you guys next week for another episode. Bye.